today what we will do in this session, we will understand how the intent entity, that is a natural language understanding model, worked before, and how we can leverage the LLM to make it more advanced, because LLM gives you capability to make your conversation more human friendly, right? So it is trained on a very large data model, which helps in identifying all the intents, keeping the conversational track. So we will use one of the tool known as Rasa uh, in our session today. So Rasa has two version. One is open source and one is pro. Pro is like enterprise kind of thing. But the we will go through the pro version. It is having a free developer license, so anyone over here can register. They will get the license. Okay. Okay. Clear till now? Any question? Okay. First thing, what is actually AI, right? So we are hearing this thing, artificial intelligence, everywhere now and then. Okay. So AI, it exists from start of the computer era itself, right? So before, we had very weak model which just identified what the context of a text is, like Google search, right? The backend of Google search, it is using AI from start. The search mapping, it's nothing but algorithm which does not do a strict matching. Okay. So when you're searching something on Google from long back, right? So even if you misspell it, you type something else, it will do the search properly for you, right? So uh, you can say it is a branch of computer science, focus on creating or performing a task which normally requires human intelligence. So the main goal of AI is to be more advanced than human, but still it's in the development phase. We have come long time from the 2015 2000 era. Okay. So what how do you train a model? So before, you were having a data set. Let's say you want to do face recognition. So what you will do is you will train your model on the data set. Okay. uh, yeah. So you will train your model on all the faces. Let's say you're having 100 employee, you will have different angle, different photos of the employee. You will train your model on that faces, and then that model, it's not going to match exactly the face, right? It will have some parameter to match, like the so we call it as tensors in this space. Okay. So when you do a matching, when you do a real testing image, what it will do is it will see the closeness of that face. So whatever is the most closest face on that trained model, it will return the result. Okay. And same, this I'm talking in context of image, but same applies for text. Like, let's say Your voice will be breaking. voice is breaking. Is it okay now? Yeah. Okay. So where did you lost me? I will repeat it. Image image part, like uh, for i- for image I have completed. Let's move to text. So for text, let's say right now you have seen there are too many customer service bots, right? You call it chatbot, AI agent, or you can call it AI assistant. So the name is different, but everything at back end, it is working in same way. Okay. So let's say you want to let's take a banking example, because we will build that demo in today's session. So let's say you are
transferring, you want to transfer, you want to create a flow where the user can come to the web application. He can just say, I want to transfer $15 or 15 SAR to XYZ recipient. Okay. So this can, we can break it down in one sentence. I want to transfer $50 to XYZ person. Or he can come, he can say, I want to transfer, right? And then the AI will say that we have missing field, like we have missing amount, we have missing name of the recipient. So it will ask in return what is the amount, who is the recipient. And then you will make a normal API call for banking API and do complete that transaction. Okay. So here the learning from data, the second point, which is, so you need to train your model, right? You need to give a training data. For you need to give the variation of this text. Like this is the whole sentence. What is the context? When I say context, it means what is the action of this text. Okay, like the agenda of the text, transferring money. Okay, then you have to make a decision based on the collected data. If he is giving all the data in one sentence, then you need to directly make API. If he is not giving the data, you need to ask the data in conversational way. Okay, so that is where reasoning and decision making will come into play. And perception, so same like text, you can have a voice bot also, like Alexa, Google Assistant, right? And for vision, we know face recognition or any identifying someone is entering a room, those kind of use case. So the field of AI, it is very big. Okay, and it completely depends upon what we want to achieve based on the business problem. Okay, any question till here? ओके, सो मैं बोल रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत, जब एक एआई चैटबॉट या एआई असिस्टेंट की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले एक बिजनेस प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो वो बिजनेस प्रॉब्लम मनी ट्रांसफ़र, अगर कोई बैंक को एक असिस्टेंट बनाना है जहाँ ट्रांसफ़र अलाउ करना है, ठीक है? तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि यूज़र आके किस वे में कन्वर्सेशन करेगा, ठीक है? तो मल्टीपल चीज़ें वहाँ पे, स्टैटिक भी हो सकता है, क्लिक बेस्ड लाइक वेबसाइट होती है। बट कन्वर्सेशनल वे में ह्यूमन फॉर्म इंटरैक्शन, जैसे कि हम लोग वेबसाइट पे जाते स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ये क्लिक करो, ये अमाउंट डालो, ये सबमिट करो, फॉर्म सबमिट हो गया। बट कन्वर्सेशनल वे में वो एन नंबर ऑफ टाइप से बोल सकता है कि ट्रांसफर मनी टू एक्स वाई जेड दिस अमाउंट, और कुछ मिस कर देगा उसमें, ठीक है? तो अगर उसमें कुछ मिस हो रहा है तो एआई केपेबल होना चाहिए टू आइडेंटिफाई क्या मिस हो गया, फिर वो आइडेंटिफाई करके रिटर्न प्रॉम्प्ट करना चाहिए कि प्रोवाइड मी दिस डेटा। जैसे ही सारे स्लॉट्स या एंटिटीज फिल होते हैं, फिर एक एपीआई कॉल जाएगा फॉर एक्चुअल ट्रांसफर। तो ये पूरा जो फ्लो है, ये एआई के कन्वर्सेशनल डोमेन में आता है, जो करंटली हम लोग चैट जीपीटी भी यूज कर रहे हैं। इट इज कन्वर्सेशनल। तो हम लोग ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डालते हैं, वो प्रोसेस करता है क्या इंटेंट है, क्या कंटेक्स्ट है, क्या आउटपुट देना चाहिए, रीजनिंग करेगा, डिसीजन करेगा, और फिर फिल्टर करके एक प्रिसाइज आंसर करेगा। बट सेम चैट जीपीटी जो है काफ़ी ओपन वाइड डोमेन है, वहाँ जाके इंटरनेट का कोई भी सवाल कर सकते हो। लेकिन जब हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात करते हैं, वो काफ़ी स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है? सो बैंकिंग असिस्टेंट अगर ले ले, या
या टिकट बुकिंग ले ले, तो वहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। अगर वहाँ पे कोई आके पूछ रहा है कि आ, ये मूवी का रेटिंग क्या है, तो वो हमें आंसर नहीं करना है, क्योंकि उसका डोमेन नहीं है। करेक्ट। तो इसके लिए वो जो चैट जीपीटी का है, वहाँ से फिर कस्टम एपीआई भी कॉल नहीं कर सकते हो। तो कोई एक फ्रेमवर्क चाहिए जहाँ से हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन मॉडल्स को। ठीक है। ये तो एलएलएम मॉडल है, एलएलएम इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये काफ़ी एडवांस्ड एआई मॉडल्स है जो करेंटली एलएलएम यूज़ कर रहा है। ठीक है। इसके पहले एनएलयू करके था, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो उसमें डेवलपर को खुद को ट्रेन करना होता था कि ये मेरा बिजनेस केस है, ये वेरिएशन है, ये मेरी एंटिटीज होगी। एंटिटीज मतलब जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, नेम, अमाउंट, उसको एंटिटीज बोलते हैं। और इंटेंट है, इंटेंट इज उसका पूरा कंटेक्स्ट क्या है, उस सेंटेंस का करना क्या चाह रहा है वो, एक्शन काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। तो अ, वो बिल्ड करने के लिए हम लोग रासा करके एक फ्रेमवर्क है, वो यूज करने वाले हैं। ओके। कोई क्वेश्चन? ओके। ओके। तो एआई असिस्टेंट क्या है? ठीक है। एआई असिस्टेंट इज नथिंग बट an application which will understand the user input. It will uh, determine the action. It will fetch the intent. It will have the history context, what user is talking, and it will respond in a conversational manner. ठीक है। तो AI असिस्टेंट जो है, आ, ये सॉफ्टवेयर है एक, जो एक क्वेरी टाइप करो या जो भी एक्शन है वो टाइप करो, उसको वो समझेगा, बिजनेस यूज केस से मैप करेगा, रेस्पेक्टिव इंटेंट एंटिटी आइडेंटिफाई करेगा और उसका रेस्पॉन्ड करेगा। ओके। क्लियर? Yes, sir. ओके। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जैसे मैंने बताया कि इंटेंट एंड एंटिटी रिकॉग्निशन इंजन होता है। ठीक है। उसको एनएलयू बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मॉडल। पर ये पूरे फ्रेमवर्क में कैसे काम करेगा कि यूजर ने लेट्स से एक टेक्स्ट डाला है। ठीक है। तो वो टेक्स्ट, ये तो एज ह्यूमन हम लोग समझ सकते हैं टेक्स्ट क्या है डायरेक्टली, बट फॉर सॉफ्टवेयर और मशीन टू अंडरस्टैंड, उसमें मल्टीपल चीज़ें होती है। सो वो टेक्स्ट को वो कन्वर्ट करेगा टोकन्स में। ओके। टोकन मतलब अज्यूम आई वांट टू ट्रांसफर, तो एक एक वर्ड को टोकन अज्यूम करो। इट वो आगे चल के उसको और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट एक वर्ड को लेगा, आई को, इट विल मैप टू सम डिक्शनरी, उसके जो वेक्टर्स, मॉडल ट्रेन होता है उसमें वेक्टर्स बनते हैं, तो मैप करेगा, फिर देखेगा नियरेस्ट वेक्टर क्या है, आई वांट, वांट मतलब कोई एक्शन है। फिर ट्रांसफर, ट्रांसफर देखेगा, फिर कोई डोमेन होगा, मल्टीपल वेक्टर्स के डोमेन होते हैं। जैसे एक एक असिस्टेंट में फैचिंग अ बैंक स्टेटमेंट एक डोमेन हो गया। ठीक है। ट्रांसफर मनी एक डोमेन हो गया। ठीक है। तो ऐसे करके एक असिस्टेंट में मल्टीपल डोमेन होते हैं। तो वो जब ट्रेन करते हैं हम लोग, सो कहाँ पे था मैं? ओके। सो लाइक आई वांट टू ट्रांसफर मनी, एक एक वर्ड को टोकनाइज कर दिया, फिर वो मैप करेगा टू इट्स वेक्टर एट बैक एंड। देन आफ्टर मैपिंग इट विल आइडेंटिफाई कि इसका इंटेंट कौन से क्लासिफिकेशन में जाएगा, कौन से डोमेन से ज़्यादा मैप कर रहा है, गेटिंग अ मिनी स्टेटमेंट और ट्रांसफरिंग अ मनी। ठीक है। फिर उसके बाद देखेगा कि सेंटेंस में कुछ डिटेल्स दिया गया है क्या जो मैं कैप्चर कर सकता हूँ, जैसे कि अमाउंट हो गया, रिसिपिएंट हो गया,
या मे बी एड्रेस हो गया, या मिनी स्टेटमेंट में डेट्स हो गया, स्टार्ट डेट एंड डेट। ओके, और इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं डायलॉग फ्लो। डायलॉग फ्लो इज़ गूगल्स NLP प्रोसेसर काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे हम लोग हमारा इंटेंट डिफाइन कर सकते हैं, एंटिटीज डिफाइन कर सकते हैं और उसे ट्रेन कर सकते हैं। इट विल क्रिएट अ मॉडल, और फिर जब हम लोग क्वेरी करेंगे तो बेस्ड ऑन आवर ट्रेनिंग डेटा इट विल आइडेंटिफाई एंड गिव द रेस्पॉन्स। ओके, ठीक है। तो ये उसका डायग्राम है। यूजर ने क्वेरी डाला, आई वांट टू ट्रांसफर सम अमाउंट। चैनल कनेक्टर से वेब हो सकता है या व्हाट्सअप हो सकता है। फिर NLU इंजन इज जहाँ पे इंटेंट और एंटिटी रिकॉग्नाइज होगा। डायलॉग मैनेजर है कि जैसे कुछ मिसिंग वेरिएबल है तो वो उससे प्रॉम्प्ट करके पूछेगा। एक्शन सर्वर इज मेकिंग एक्सटर्नल सिस्टम कॉल, जैसे बैंक की कोर APIs कॉल कर रहा है, तो दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ एक्शन सर्वर। फिर रेस्पॉन्स जनरेट करेगा और यूजर को रिटर्न भेज देगा। ओके, नाउ हम लोग रासा के बारे में समझेंगे। ये रासा का आर्किटेक्चर डायग्राम है कि कन्वर्जेशन उसमें क्या कंपोनेंट्स है। तो डायलॉग अंडरस्टैंडिंग का कंपोनेंट है, ठीक है। फिर डायलॉग इंटरनली इसका जो फ्रेमवर्क है मॉडल्स यूज करता है टू अंडरस्टैंड द डायलॉग। फिर वो फ्लोज से मैप करता है। फ्लोज क्या है? जैसे मैंने बोला कि ट्रांसफरिंग मनी इज वन फ्लो, गेटिंग मिनी स्टेटमेंट इज वन फ्लो, ठीक है, वो करेगा। और फिर एंटरप्राइज सर्च, एंटरप्राइज सर्च इज नथिंग, यू कैन प्लग LLM टू योर डायलॉग मैनेजर, ठीक है, और फिर वो रेस्पॉन्ड करेगा। ओके, सो इस पे कोई क्वेश्चन अभी तक? सो हम लोग फोकस कर रहे हैं AI असिस्टेंट पे, ठीक है, हाउ यू कैन बिल्ड AI असिस्टेंट। एआई असिस्टेंट के लिए बेसिकली रास्ता का यूज़ किया जाता है क्या? सिर्फ रासा नहीं, जैसे मैंने बताया ना, डायलॉग फ्लो भी है, रासा भी है। रासा एक अच्छा टूल है, इट इज हैविंग बोथ ओपन सोर्स एंड प्रो वर्जन। यू कैन यूज डायलॉग फ्लो ऑल्सो। लैंगचैन करके कुछ है वो, जो AI एजेंट्स भी बना सकते हो, AI असिस्टेंट भी बना सकते हो, वो भी है। सो मार्केट में काफी टूल्स है, बट वी आर गोइंग विथ रासा। ओके, आई विल ओपन द डॉक्यूमेंटेशन। I will share this link, you can go through it. ठीक है, तो मोस्टली जो AI में लैंग्वेज बहुत कॉमनली यूज होता है दैट इज पाइथन। और उसका ऐसा नहीं है कि जावा में नहीं बनेगा, यू कैन मेक इट इन जावा ऑल्सो, बट पाइथन में मल्टीपल पैकेजेस अवेलेबल है और कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जावा इज मोर फोकस ऑन एंटरप्राइज एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। तो इसलिए जितने भी ग्रोथ हुए इट इज आइदर इन पाइथन और गो। ठीक है, तो इफ यू वांट टू वर्क इन AI तो मोस्टली पीपल लर्न पाइथन। और वो पढ़ने का वजह है क्योंकि कम्युनिटी काफ़ी वास्ट है, पैकेजेस काफ़ी मिल जाते हैं, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क मिल जाते हैं, ट्रेंड मॉडल मिल जाते हैं, प्लगिंग दैट ट्रेंड मॉडल काफ़ी इजी हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट रासा इंस्टॉल करने के लिए यू नीड टू हैव अ पाइथन इंस्टॉल। पाइथन का 3.10 और 3 अबाउट 3.10 वर्जन यू कैन इंस्टॉल। ओके, एंड टू इंस्टॉल पाइथन यू विल गेट डायरेक्टली विंडोज में EXE आ जाएगा, ठीक है।
उबंटू में सिर्फ पाथ वेरिएबल सेट करना होगा. यू कैन रिफर, देयर आर टू मेनी ट्यूटोरियल हाउ यू कैन इंस्टॉल पाइथन. Okay. Then this UV manager, जिस तरह you people are familiar in Java or which language? Java. Java, right? हाँ, so Java में जैसे Maven और Gradle है पैकेज मैनेजर टूल, सेम वे पाइथन में पिप होता है और उसके ऊपर एक और पैकेज मैनेजर टूल है यूवी करके. ठीक है, तो यूवी काफ़ी इजी वे में एनवायरनमेंट वगैरह बनाने में, वर्चुअल एनवायरनमेंट मतलब जावा में तो पूरा प्रोजेक्ट ही अलग हो जाता है, बट पाइथन में जो इंस्टॉलेशन होता है वो पाइथन लेवल पे होता है इंस्टॉलेशन. ठीक है, तो डायरेक्टली जैसे जावा 1.8 में कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं तो जावा पे नहीं हो रहा है, वो उसका रेफरेंस मेवन में जा रहा है और वो मेवन उस प्रोजेक्ट रेफर करेगा. मल्टीपल वर्जन भी है, अगर सिस्टम में अलग प्रोजेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे क्योंकि पाइथन लेवल पे इंस्टॉलेशन हो रहा है तो डिफिकल्ट होता है, इसलिए वर्चुअल एनवायरनमेंट करके कॉन्सेप्ट है. तो वो क्या करता है, वो डिपेंडेंसी को आइसोलेट कर देता है. ठीक है, वो एक फोल्डर में सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा और वो फोल्डर में पाइथन वर्जन भी इंस्टॉल Yes. करेगा, नॉट ओनली डिपेंडेंसी. ओके. Okay, sir. What I will do is I will create a complete new set of it. ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है मेरे पीसी में. 3.11 इंस्टॉल्ड है. ओके. ओके, सो मैं नया फोल्डर नहीं बनाऊंगा, ये फोल्डर में ही बना दूंगा यहाँ पे AI सेशन 2 में. ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने UVVENV किया तो ये कमांड क्या करेगा, इट विल इंस्टॉल पाइथन 3.10 ये .venv फोल्डर में. ठीक है, यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल कर दिया और अब मुझे इससे ये पाइथन वर्जन से इंटरैक्ट करना है तो सिर्फ ये रन करना है, एक्टिवेट UVN. ठीक है, तो ये अब मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट हो गया, ये मेरे पीसी वाले पाइथन वर्जन में नहीं इंस्टॉल होगा. ठीक है, ये एक्टिवेट कर सकते हो. फिर रासा प्रो करके एक पैकेज है वो इंस्टॉल कर सकते हो. अब ये क्या करेगा, ये सारे डिपेंडेंसीज को यहीं पे इंस्टॉल करेगा. ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर. और मीनवाइल रासा के लिए यू कैन रिक्वेस्ट डेवलपर लाइसेंस. ये उसका पेज है, यहाँ पे जाके एक सिर्फ ईमेल डालोगे, दे विल सेंड यू वन डेवलपर लाइसेंस.
सो ये जो डेवलपर एडिशन है इट इज फ्री। ये ये मंथली 1000 कन्वर्सेशन देता है। ठीक है। इफ कंपनीज को यूज करना है तो उनके लिए एंटरप्राइज वर्जन आता है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, ये देख लो, ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लिया उसने। फिर वो रजिस्ट्रेशन पे आपको ईमेल पे आ जाएगा लाइसेंस की, उसको यहाँ पे सेट करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैं सिर्फ सेट कैसे करता है वो दिखा दूंगा। ठीक है, इसको यहाँ पे रन कर दो। बस ये जो की आई होगी उसको कॉपी करके एक रासा लाइसेंस के आगे सेट कर दो। ये सेम कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यू कैन चेक कि कौन सा रासा वर्जन इंस्टॉल्ड है। थोड़ा स्लो है। मीनवाइल मैं ये तो करंटली एलएलएम यूज करके बनाएगा। ठीक है, तो इसके पहले जो ओल्डर मेथड है जहाँ पे एनएलयू को हमको खुद ट्रेन करना होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये पुराना वाला है। इसमें हमको खुद को इसको एग्जाम्पल देना होता है कि क्या सिनोनिम है, क्या इंटेंट होगा और क्या एंटिटीज रहेगा। और ट्रेनिंग एग्जाम्पल ये डेटा फॉर्मेट है। ठीक है, इस तरह से एक YML फाइल बनानी होती है जहाँ पे इंटेंट डिफाइन करना होता है और उसके सैंपल देने होते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर प्रॉपर सैंपल नहीं दिया तो इंटेंट का ओवरफिटिंग होता है। ओवरफिटिंग मीन्स कुछ भी टाइप करोगे वो एक ही इंटेंट को आइडेंटिफाई करेगा। तो क्योंकि ये मैनुअली
सारा डेटा ट्रेन कर रहे हो, तो बेस्ड ऑन योर ट्रेनिंग सेट इट विल ट्रेन अ डेटा, ठीक है। और ये प्रीवियसली स्टोरीज वगैरह लिखनी होती थी कि फ्लो कैसे मैनेज करेगा उसके लिए। और फिर एंटिटीज भी डिफाइन करना होता था कि ये हाउ मच डू आई हैव ऑन माय सेविंग अकाउंट, तो सेविंग इज अकाउंट, अकाउंट एंटिटी है, ठीक है। तो इस तरह से एंटिटीज डिफाइन होती थी। तो ये इसको बोलते हैं टैगिंग ऑफ डेटा। तो यू विल टैग सम पैरामीटर कि ये मेरा स्लॉट है, ये मेरा एंटिटी है। और उसके बाद जब सारा डेटा कंप्लीट हो जाता था तो एक मॉडल जो इनके पास है वो यूज करके ट्रेन करते थे। इसमें पाइपलाइन डिफाइन करके कि इसमें से ये सारे मॉडल्स थे, स्पेसी, एनएलपी, सारे ओपन सोर्स मॉडल है। तो सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट मीन्स बेस्ड ऑन फ्यूचर, किस फीचर पे वो ज़्यादा ट्रेनिंग पे फोकस करेगा उसके बेसिस पे। थिंक सो दिस इज डन, ओके, ठीक है। वो इनिशियल कुछ टाइम ले रहा था पीछे, ठीक। या एक प्रोजेक्ट बंद कर देता हूँ, लेट अस। ठीक है, तो ये ओल्डर वे ऑफ ट्रेनिंग है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि हमने जितना ट्रेन किया है उतना ही उसको पता है कि इंटेंट क्या है, एंटिटीज क्या है। अब जब हम लोग न्यू वे यूज करते हैं यूजिंग एलएलएम, तो ट्रेनिंग डेटा हमको नहीं देना है बिकॉज एलएलएम ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है। उसको सिर्फ रेस्ट्रिक्ट करना है कि इसके बाहर का आंसर नहीं दे, तो वो जो है रासा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा कि किस तरह से नहीं देगा वो आंसर। फ्लो मैनेजर करके होता है वो, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, तो एक इसका सैंपल मॉड क्रिएट कर लेता है। ये ओल्डर वाला मैं मीनवाइल रन करके दिखा देता हूँ। ओके, उसको ब्लैंक डायरेक्टरी चाहिए, तो एक डायरेक्टरी बना देते हैं बॉट। तो ये रासा इनिट टेम्पलेट क्या करेगा, जिस तरह से स्प्रिंग बूट में हम लोग
स्प्रिंग इनिशियलाइजर यूज करते हैं, उसी तरह से ये एक सैंपल प्रोजेक्ट बना के दे देगा विथ नेसेसरी कॉन्फिग फाइल। हम लोग इनिशियल मॉडल भी ट्रेन कर देते हैं। इसमें बैंक ट्रांसफर का ही एप्लीकेशन होगा, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने हमको ये फाइल्स दिया है, कॉन्फिग, क्रेडेंशियल, डोमेन, एंड पॉइंट। ओके, तो एंड पॉइंट जो है ये डिफाइन करेगा कि कौन सा हम लोग रीफ्रेजिंग होस्टेड मॉडल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, क्लाउड यूज कर सकते हो, कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो, बट ये रासा का खुद का ट्रेन मॉडल है, रासा कमांड जनरेशन मॉडल, और इंटरनली वो लामा यूज कर रहा है। ओके, ये वाला। और इसमें ये जो एक्शन एंड पॉइंट है, ये लेयर है, ये एक्शन फोल्डर को रिफर कर रहा है। यहाँ से हम लोग एक्सटर्नल एपीआई वगैरह कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये मॉडल्स है, ये कॉन्फ़िग है। कॉन्फ़िग डिफाइन करता है कि कौन सा एलएलएम पाइपलाइन एक्चुअली यूज करेगा ये कमांड जनरेशन के लिए और फ्लो के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था, इसके पास काफ़ी पाइपलाइंस वगैरह थे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेट कर सकते हैं कॉम्पैक्ट एलएलएम कमांड जनरेशन, सर्च रेडी एलएलएम कमांड जनरेशन। और इस पे जाएंगे तो इसका बताएगा कि फीचर्स क्या है, क्या यूज़ किया, कौन सा मॉडल यूज़ करके किया है, और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड है। जैसे इम्प्रूव्स द ट्रिगरिंग एक्यूरेसी ऑफ द नॉलेज आंसर कमांड। ठीक है, और सेकंड मॉडल का कोई और चीज़ पे ज़्यादा फोकस होगा। ठीक है, फिर ये क्रेडेंशियल है। यहाँ पे रासा में और भी वॉइस वगैरह इंटीग्रेट कर सकते हो, चैनल से इंटीग्रेट कर सकते हो, टेलीग्राम से, और कोई मैसेंजर से, या वेब से इंटीग्रेट कर सकते हो, स्लैक से कर सकते हो। तो उसके लिए ये ENV फाइल जैसा है। ठीक है, और डोमेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है डोमेन। सो डोमेन में हम लोग बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट डिफाइन करेंगे कि स्लॉट्स क्या है। ठीक है, स्लॉट्स क्या है, उसका रेस्पॉन्स क्या होगा। फिर स्लॉट्स के अलावा हम लोग एक और पैरामीटर है, लेट मी चेक हियर। एक्शंस डिफाइन कर सकते हो कि कौन से एक्शन को ट्रिगर करना है, वो एक्शन क्या करेगा। ठीक है, ये फाइल क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? सो सिंपल है ये, दिस इज ओनली YML फाइल, और इसका स्ट्रक्चर एक बार समझ में आ गया तो वी कैन मेक एनी बिजनेस लॉजिक और AI असिस्टेंट। यस सर। ठीक है, तो मेन फोकस इन फाइल्स पे करना है। ये जो डोमेन फाइल है, ये फ्लोज है। ठीक है,
यहाँ पे मेन फोकस करना है। इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलेगा कि कैसे डिफाइन करना है फ्लो। और ये पैटर्न्स तो बीच में जैसे बीच में कुछ और बोल दिया यूज़र ने, तो उसके लिए उसको हम लोग फ्लोज किस तरीके से स्विच करेगा वो डिफाइन कर सकते हैं। बट फॉर नाउ इग्नोर पैटर्न्स, फ्लोज, डोमेन और एक्शन, इन फाइल पे फोकस करना है। ठीक है, तो फ्लोज में भी जैसे हम लोग ने देखा है, यहाँ पे ट्रांसफर मनी का सैंपल डाला हुआ है। तो ट्रांसफर मनी लिखा है, ये फ्लो का नाम है। ठीक है, ट्रांसफर मनी। अब उसमें स्टेप्स क्या होगा ट्रांसफर मनी में, ये तो डिस्क्रिप्शन है, इसको कुछ भी डाल सकते हो। ये स्टेप्स क्या होगा, तो फर्स्ट वी विल कलेक्ट रिसिपिएंट, वी विल कलेक्ट अमाउंट। ठीक है, और फिर हम लोग कोई एक्शन करेंगे, इसके बीच में एक और एक्शन ऐड करेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए सारा स्टैटिक रखते हैं। ठीक है, कोई एक्सटर्नल कॉल वगैरह के लिए फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये रिसिपिएंट अमाउंट, ये कैसे पता चला कि रिसिपिएंट और अमाउंट ही होगा, ये और भी कुछ हो सकता था ना रिसिपिएंट के आगे। ठीक है, तो ये हम लोग डिफाइन करते हैं डोमेन फाइल में। ठीक है, डोमेन में हम लोग स्लॉट्स बोलेंगे। स्लॉट्स मतलब एंटिटीज, जेनरिक टर्म इनका एंटिटीज होता है। ठीक है, रासा में उसको स्लॉट्स बोलते हैं। तो ये स्लॉट्स है, ये यू कैन डिफाइन दिस, रिसिपिएंट बोलो या इसको कुछ भी बोलो। ठीक है, ये तुम्हारा कीवर्ड है, और उसका टाइप दो, दिस इज टेक्स्ट एंड इट विल बी मैप्ड फ्रॉम एलएलएम। ठीक है, तो जब ये टाइप दे रहे हो ना फ्रॉम एलएलएम, इसका मतलब है कि ये यूज करेगा इनका एलएलएम, यहाँ पे जो डिफाइन किया है। ठीक है, और सेम अमाउंट के लिए किया है। तो एंटिटी फेचिंग एलएलएम से किया है, इस वजह से कि वो ज़्यादा एडवांस ट्रेन है, इजीली फेच कर लेगा। ओके, और जैसे कि क्या आंसर देना है उसको कंप्लीट होने पे ट्रांसफर, तो ये यहाँ पे हम लोग ने डिफाइन किया टेक्स्ट ऑल डन अमाउंट रिसिपिएंट। तो ये अमाउंट और रिसिपिएंट, ये स्लॉट्स का नेम जो डिफाइन किए वो होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, मतलब ये इसका जो YML फाइल है, मेन कॉन्फ़िगरेशन ही है रासा में सेटअप करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब ये वर्जन में ट्रेन नहीं करना है खुद को, तो एरर चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं, एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि LLM से डायरेक्ट यूज कर रहा है। ठीक है, ये यूज अटर फ्री चिट चैट, मतलब बीच में कुछ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट पूछ लिया कि हु आर यू वगैरह वगैरह। ठीक है, इस पे भी फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मेन फोकस है टू बिल्ड अ फ्लो वेयर इट इज डूइंग सम ट्रांसफर। ठीक है, अब ठीक है, इसको रन करते हैं, एज इट इज रन कर लेते हैं। ठीक है, सो रासा इंस्पेक्ट करने पे ये लोकली अपने को एक टेस्टिंग इंटरफेस दे देगा, जहाँ पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि क्या क्या रेस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ये चैट विंडो है, फिर इसको किसी भी चैनल से इंटीग्रेट कर सकते हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन हम लोग देख के ये एंड पॉइंट्स यहाँ पे ये क्रेडेंशियल में फिर सेटअप करना होता है कि किससे इंटीग्रेट करना है, कैसे करना है। तो नॉर्मली अगर कोई कंपनी का खुद का वेब चैनल है तो वो सॉकेट्स यूज करके इंटीग्रेट करेगी, फिर वो सॉकेट पे इवेंट जाएगा कि ये यूजर का इवेंट है, ये बॉट का इवेंट है, और उसको डिस्प्ले करना है उनके चैट पे। ठीक है, यहाँ पे डालते हैं हेल्प मी ट्रांसफर सम मनी।
ठीक है। यहाँ पे इसने ट्रिगर किया, फ्लो को डिटेक्ट किया कि ये ट्रांसफर मनी का फ्लो है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया था हेल्प यूजर सेंड मनी टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो ये डिस्क्रिप्शन से ये क्या करता है, ये जब ये इंस्पेक्ट से पहले हम लोग को रासा ट्रेन करना होता है, वो मैंने पहले ही कर दिया था, मैं वापस से कर देता हूँ एक बार। तो जब हम लोग ये रासा ट्रेन करते हैं, वो क्या करता है कि फ्लोस को देखता है, इसका डिस्क्रिप्शन देखेगा, फिर यहाँ पे जो स्लॉट्स वगैरह डिफाइन है डोमेन में, इनको भी देखेगा और अकॉर्डिंगली मॉडल्स में एक ट्रेंड मॉडल डाल देगा, और जब हम लोग रन करते हैं तो ये मॉडल यूज करेगा वो, ठीक है। ये मैंने इसको बंद कर देते हैं। रासा इंस्पेक्ट हम लोग का जो ट्रेन मॉडल है वो यूज करके एक टेस्टिंग विंडो ओपन कर देगा। अब मैं ये बार आई वांट टू सेंड मनी लिखता हूँ, नॉट ट्रांसफर, ठीक है। फिर से उसने आइडेंटिफाई किया कि ये ट्रांसफर मनी फ्लो है, फिर उसने देखा कि ये फ्लो में रिक्वायर्ड क्या क्या कलेक्ट करना है, वो मैंने डिफाइन किया है। ये देखा रेसिपिएंट है, अमाउंट है, फिर उसने चेक किया कि ये रेसिपिएंट अमाउंट क्या है, तो यहाँ पे आके देखा रेसिपिएंट इज टेक्स्ट, ठीक है, और इसको एलएलएम से, मतलब वो टेक्स्ट लेगा, टेक्स्ट में अगर ये रेसिपिएंट प्रेजेंट है तो एलएलएम से फेच करेगा, मैनुअली हम लोग फेच नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ अगर रॉ वे में कैसे चल रहा है, तो ऐसे कुछ fetch recipient name from the text below, transfer to Bhavesh Khan, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने जिस तरह से दिया है ना इंटरनली, वो ऐसी प्रॉम्प्ट्स बनाता है, ठीक है, एलएलएम के लिए। फिर एलएलएम क्या करेगा, उसको फेच करके देगा। ये मैंने चैट जीपीटी पे किया इसलिए ऐसे आ रहा है, बट वो जेसन स्ट्रक्चर में होता है सब कुछ, ठीक है। ये समझा, इसके लिए यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, अदरवाइज वो प्रीवियस वाला मैंने बताया था ना, ओल्ड वे में एंटिटीज वगैरह सारा ट्रेन करना पड़ता वहाँ पे। ये वाले में ये रासा प्रिमिटिव, इस तरह से सारा स्लॉट्स का वैल्यू देना पड़ता कि ये कैटेगरी में ये सारे वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। बट एलएलएम का बेनिफिट यही है कि वो सीधा एलएलएम से फेच कर ले आ रहा है, और समथिंग लाइक दिस ऐसे प्रॉम्प्ट बनाता है वो एलएलएम को, ठीक है। वो प्रॉम्प्ट बनाता है बेस्ड ऑन आर फ्लो, ये फ्लो में जो डिस्क्रिप्शन हम लोग ने डाला है, फिर इसका जो नेम दिया है स्लॉट को, ठीक है, ये स्लॉट को जो नेम दिया है उसके बेसिस पे स्लॉट को डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, लेकिन ये सेल्फ सफिशिएंट है, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है कि क्या स्लॉट है ये। रिसिपिएंट एलएलएम को पता है, रिसिपिएंट मतलब समवन हु इज गेटिंग समथिंग, ठीक है, मनी हो सकता है या कुछ और पार्सल हो सकता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? ये मतलब पूरा एलएलएम मॉडल से अभी ट्रेन है ना अभी के लिए ये? हाँ, करंटली एलएलएम प्लस मेरा फ्लोज, ये क्योंकि फ्लोज को रेस्ट्रिक्ट करेगा ना,
कि क्या देना है। हाँ ओके ठीक है, तो इसके लिए ये देखो यहाँ पे ये इसका डिबग विंडो है। एक्चुअली लाइव में ऐसा नहीं आता, ये दिखा रहा है कि इसने फ्लो डिटेक्ट किया, ट्रांसफर मनी, और फ्लो में क्या है, रिसिपिएंट है, अमाउंट है, फिर ये लेगा। तो ये विजुअली भी बता रहा है ताकि इजीली समझ में आ सके कि कैसे चलेगा ये फ्लो। ठीक है, एक क्वेश्चन है। हम्म। जो हमने प्रॉम्प्ट दिया वहां पे चैट जीपीटी पे, तो वो जो प्रॉम्प्ट होता है वो अपने हिसाब से कन्वर्ट करता है क्या एलएलएम? हाँ, इस वो हिसाब रासा अपने हिसाब से कन्वर्ट करके एलएलएम को देता है, एलएलएम नहीं अपने हिसाब से करेगा। तो ये जो अच्छा स्ट्रक्चर हम लोग ने बनाया है ना, रासा क्या करेगा, पहले एक मॉडल इसके ऊपर रन करेगा। ये जो मॉडल क्रिएट हुआ है ना, ये मॉडल वही है कि ये फ्लोज वाईएमएल रीड करेगा, डिस्क्रिप्शन देखेगा, इसके हिसाब से देखेगा इसके स्टेप्स क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉम्प्ट देगा कि मुझे ये कलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे ये कलेक्ट लिखा हुआ है तो वो बोलेगा help me identify recipient amount from this text, okay, and if it is missing, prompt to collect the text, ऐसे करके प्रॉम्प्ट देगा और वो उसको मैनेज रासा करेगा कि ये कहाँ, अब ये रेस्पॉन्ड आया तो कहाँ स्टोर करना है, नेक्स्ट टाइम पे क्या पूछना है उससे, वो रासा मैनेज करेगा। ओके थैंक यू। ठीक है, would you like to send? तो send it to my friend। ठीक है, इस वो देखेगा कि रिसिपिएंट देखो यहाँ पे आ गया, बराबर फिल कर दिया उसने ये स्लॉट। अब वो अमाउंट पूछ रहा है, तो सेंड $35। ठीक है, तो जैसे ही ये हुआ, ये सारे स्लॉट फुल हो गए। ठीक है, तो ये वैलिड कन्वर्जेशन पे आ गया। फिर वो जाएगा, कंटिन्यू कन्वर्जेशन इज नॉट नल, यहाँ नहीं जाएगा, फिर यहाँ जाएगा यूज आस्क कंटिन्यू कन्वर्जेशन, ये लास्ट वाला मैसेज देगा, ऑल सेट द पेमेंट, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प। ये इसने खुद से रीप्रॉम्प्ट किया है, ये वाला हम लोग ने डिफाइन नहीं किया। ये रासा का इनबिल्ट फीचर है कि कन्वर्जेशन को कंटिन्यू रखने के लिए ये करता है। ठीक है, अब ये जो है ऑल डन 35 हैज बीन सेंड, ये हम लोग ने डिफाइन किया है डोमेन में, ये रहा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, अब ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोलेगा कि आई हैव डन द ट्रांसफर, हर बार अलग अलग बोलेगा। तो इससे बेनिफिट ये मिलता है कि एंटरप्राइज के लिए एक ब्रांड इमेज होता है कि मेरा ये फ्लो है, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा वो, तो वो भी मैनेज कर रहा है, बट इंटेलिजेंस ऑफ एलएलएम भी यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे, एक चीज, हाँ हाँ, अभी जैसे अमाउंट ट्रांसफर का यहाँ पे आपने डाला है, तो अमाउंट ट्रांसफर तो ऐसे होगा नहीं बिना कोई एपीआई कॉल किए हाँ ऐसा, हाँ, मतलब तो उसके करेक्ट लिए करेक्ट, एपीआई यहाँ पे डालनी पड़ेगी राइट? हाँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो फ्लो है ना, यहाँ पे एक एक्शन बनाएंगे। ठीक है, ये एक्शन क्या होगा, ये एक्शन डॉट पी वाई है, ये वाली फाइल से ये एक्शन का नाम पहले से डिफाइंड है। ठीक है, तो ये बैलेंस चेक कर रहा है, सेम वे में ट्रांसफर करके एक एक्शन बना सकते हो, तो मैं बैलेंस वाला ही डाल देता हूँ। ठीक है, अब तुमने ये एक्शन बनाया, फिर से ट्रेन करना पड़ेगा, बट अभी एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि इसको पता नहीं है ये एक्शन चेक सफिशिएंट फंड्स है क्या। ठीक है, वो बोलेगा डिफाइंड इट इन डोमेन या मिसमैचिंग इन डोमेन, ऐसा कुछ। द एक्शन चेक इज यूज्ड इन द स्टेप ट्रांसफर मनी बट इज नॉट लिस्टेड इन डोमेन फाइल, तो उसको पता ही नहीं ये है क्या चीज,
इसके लिए उसने एरर दिया है, तो इसको हमको डिफाइन करना होगा डोमेन में। डोमेन में यहाँ पे एक्शन करके होता है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ ये ठीक है। अब इसको यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं ताकि पता चले कि आया था। ठीक है, फिर से ट्रेन करना होगा। अगर मैं खाली रन कर दूंगा तो वो पुराना मॉडल उठाएगा यहाँ से, और उसमें वो एक्शन वगैरह है नहीं, वो वापस से सेम फ्लो चला देगा। तो ऐसे रन किया, अगर लग रहा है ये सही नहीं, इसके पहले वाला ही सही था, तो वो पुराने मॉडल पे मैं स्विच कर सकता हूँ। और ये हमेशा टाइम स्टैम्प के बेसिस पे लेटेस्ट उठाता है। जब हम लोग इंस्पेक्ट रन करते हैं उस पे मॉडल स्पेसिफिकली पास कर सकते हैं रन करते टाइम। ठीक है, फिर से रन कर लेते हैं एक बार। अब क्या होगा यहाँ पे, रिसिपिएंट अमाउंट लेगा, रिसिपिएंट लेगा, अमाउंट लेगा, फिर देखेगा कि बैलेंस है क्या ये अमाउंट ट्रांसफर करने का, और फिर उसके बाद वो असल में एपीआई कॉल नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग एक और एक्शन डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ मतलब ट्रांसफर आगे के जो परफॉर्म होना चाहिए हाँ तो सही एक्शन में ही कॉल होंगे, राइट? हाँ, वो सेम में भी कर सकते हो, उसके बाद एक और एक्शन डालो, डिपेंड करता है कैसे स्ट्रक्चर करना है। अब इसको मैं डायरेक्ट देता है, आई वांट टू ट्रांसफर $30 टू तवेश खान। ठीक है, ये दिखा, ये अब ये बार इसने क्या किया, सब कुछ एक साथ ही लेके कर दिया। ठीक है, वो प्रॉम्प्ट वगैरह में गए ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरा सारा फील्ड वो हो गया, और ये एक्शन चेक सफिशिएंट बैलेंस में गया यहाँ पे। तो हम लोग ये एक ऐसे डालेंगे। ठीक है, हाँ ये वाला स्लॉट देखो, अभी तक हम लोग ने एलएलएम यूज किया था, अब ये बुलियन स्लॉट है, ये सिर्फ कंट्रोल के लिए यूज कर रहा है, तो यहाँ पे कोई एलएलएम कॉल नहीं जाएगा, क्योंकि ये सेट हो रहा है डायरेक्टली यहाँ से। करेक्ट। अब सेम इसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे फ्लो चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा होगा, इफ वो स्लॉट हैज थ्रू वैल्यू देन वैसा। ठीक है, लेकिन उसको इफ एल्स ऐसा नहीं लिखते, वो गलत दिखा रहा है, ये ऐसा आएगा। ठीक है, ये इसका मतलब स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोग जावा में होता है इफ एल्स स्ट्रक्चर। तो ये क्या कर रहा है, ये तुमको YML में कॉन्फ़िगरेशंस दे रहा है, और action.py में प्रोग्रामिंग करने की कैपेबिलिटी दे रहा है। तो फ्लो तुमने यहाँ डिफाइन कर दिया, लेकिन प्रोग्राम तुम action.py में कर रहे हो। और action.py जरूरी नहीं है ये सेम प्रोजेक्ट में हो, वो एक अलग माइक्रो सर्विस हो सकता है। फिर उसको सेटअप करने के लिए हम लोग को यहाँ पे प्रॉपरली उसका एंड पॉइंट वगैरह सब देना होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक्शन चेक करेगा, स्लॉट हैज सफिशिएंट फंड, क्योंकि ये बुलियन है तो डायरेक्टली देखेगा अटर इनसफिशिएंट फंड। ठीक है, एल्स ट्रांसफर सक्सेसफुल। लेकिन ट्रांसफर सक्सेसफुल क्या है, तो हमको इसको आईडी देना पड़ेगा कि दिस इज ट्रांसफर सक्सेसफुल, और अटर इन सफिशिएंट फंड ये मेरे को बनाना होगा डोमेन में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जाके एक अटर इनसफिशिएंट फंड बनाना है। तो इसके लिए इसको सेपरेट कर देता है। तो वो क्या करता है, ऐसे कुछ इसका लॉजिक है, ये बोलता है मैं
स्लॉट्स तुमको फिल करके दूंगा, एक्शन करने दूंगा, जैसे ये वाला स्लाइड मैंने दिखाया था, ठीक है। फ्लोज, कस्टम एक्शन, एंटरप्राइज सर्च। तो फ्लोज मतलब ये जो हम लोग लिख रहे हैं डोमेन और फ्लोज में, वहां पे वो मैनेज कर रहा है कि फ्लोज क्या है। कस्टम एक्शन, वो डोमेन से उसको पता है कि ये चीज एक्शन है, क्योंकि देखो यहाँ पे डोमेन में मैंने दिया है कि ये एक्शन है, तो उसको इससे पता है कि मुझे ये पाइथन फाइल को कॉल करना है या एक्शन में जो डिफाइंड है वहां पे ये नाम से कॉल करना है, ठीक है। और ये यहाँ पे कैसे वो नाम मैप हो रहा है, इसको नेम को मैंने एक्शन चेक सफिशिएंट फंड्स दिया है, और सेम यहाँ पे दिया है एक्शन नाम, तो वो वही फंक्शन कॉल करेगा जिसका नेम एक्शन चेक सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम लोग इसको, अभी भी एरर करेगा, दिखाता हूँ मैं। अभी ये बोलेगा अटर इनसफिशिएंट, अच्छा अटर इनसफिशिएंट फंड डाल दिया मैंने, तो अब नहीं देगा एरर, कि डोमेन में हमने डाल दिया अटर इनसफिशिएंट फंड, नहीं दिया। ट्राई टू सेट नॉन एग्जिस्टिंग स्लॉट हैज सफिशिएंट फंड, हाँ ये make sure you add all your slots in domain, ठीक है डाला तो है। देखो ये फंक्शन भी जब ट्रेन करते हैं रजिस्टर करता है कि फंक्शन है, ओके। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर मिसमैच किया है मैंने, हाँ डबल कोट्स मिसिंग है, ठीक है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्शन में बैलेंस 1000 डाला है और ये 1000 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो अब मैं करता हूँ आई वांट टू ट्रांसफर $3000, ठीक है। ये आया इस पे, आई एम सॉरी बट यू डू नॉट हैव सफिशिएंट, ठीक है। मैंने 3000 डाला, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, इसने कंपेयर किया अमाउंट के स्लॉट को बैलेंस से, ठीक है। अब मैं 3000 है ना, अब मैं 99 डालता हूँ तो वो चल जाएगा, ठीक है। अब सेम वे में जैसे हम लोग ने फ्लोज में चेक सफिशिएंट ये डाला है, वैसे ही यहाँ पे एक और एक्शन डाल सकते हैं जो एक्चुअल में बैंक एपीआई कॉल करेगा, ठीक है। एक्शन ट्रांसफर मनी, ऐसे करके एक एक्शन बना सकते हो जो एक्चुअल में कॉल करेगा, और फिर बेस्ड ऑन सक्सेस फेलियर उसको हम लोग मैसेज दे सकते हैं कि सक्सेस है या फेल्ड है, ठीक है। ये समझा? ओके। अब इसका बेनिफिट मतलब क्या है, ये रासा यूज करने का, ठीक है। अगर ये मैं कोई भी एलएलएम यूज करके बनाने जाऊंगा तो ये फ्लो मैनेजमेंट का मुझे पूरा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, करेक्ट। वो भी
इतना एडवांस नहीं होगा जितना ये है करंटली काम कर रहा है। और फिर उसमें डेवलपमेंट एफर्ट जा रहा है, बट ये रेडीमेड दे रहा है जो एलएलएम की कैपेबिलिटीज यूज करने दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो एक नॉर्मल एआई असिस्टेंट है, मैं रासा यूज करके ये रैग पाइपलाइन बना सकता हूँ। ठीक है, सो रैग पाइपलाइन क्या है वो भी मैं दिखा दूँ एक बार। एआई एजेंट्स बना सकता हूँ। ठीक है, तो रैग पाइपलाइन में असल में क्या होता है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है या कोई वेबसाइट है जहाँ से मुझे रन टाइम पे एआई से फेच करके लेके आना है। ठीक है, मेरा मॉडल उस पर ट्रेन नहीं है, लेकिन वो वेबसाइट पे या डॉक्यूमेंट पे वो जाएगा, फेच करके लेके आएगा। जैसे हम लोग चैट जीपीटी को कोई पीडीएफ देते हैं और बोलते हैं इसमें से ये सर्च करके दे दो। ठीक है, तो वो चैट जीपीटी का रैग पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेड है। तो सेम कस्टम रैग पाइपलाइन बना सकते हो तुम्हारा। तो ये और डॉक्यूमेंट भी काफ़ी इसका अच्छा है। तो ये वेक्टर वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, जैसे डॉक्यूमेंट जब अपलोड करते हो तो उसका वेक्टर फॉर्म्स बनाता है जो एलएलएम क्वेरी कर पाता है, एलएलएम को वेक्टर वे में समझता है कि डाटा क्या है। क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि ये वर्ड क्या है, किससे मैच हो रहा है क्या, तो उसके लिए इट इज बाइनरी या वेक्टर। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट को वेक्टर में स्टोर करता है। तो वेक्टर स्टोर करने के लिए ट्रेडिशनल पोस्टग्रेस माइस्क्ल नहीं, वेक्टर डेटाबेसेस होते। मोंगोडीबी ने वेक्टर का सपोर्ट लाया है, मोंगोडीबी भी यूज कर सकते हो, पाइन कौन करके है वो भी यूज कर सकते हो। क्रोमा डीबी सर। क्रोमा क्रोमा डीबी पता नहीं, मुझे देखना होगा। ये भी वेक्टर है, सपोर्टिंग वेक्टर्स। सो जो जो भी डेटाबेस वेक्टर सपोर्ट करता है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो रैग हो गया। यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें बना सकते हो। तो डिप्लॉयमेंट भी दिया है इसने कि यू कैन डिप्लॉय ऑन कुबरनेटिस CI/CD। ये तो हम लोग लोकली कर रहे हो, लेकिन कंपनी के लिए जब कर रहे हो तो डिप्लॉयमेंट करना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसके भी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं। और अभी मैंने जो बताया था कि NLU हम लोग खुद ट्रेन करते हैं, तो यहाँ पे रासा ने ये बेनिफिट दिया है कि मैं मेरा भी ट्रेन कर सकता हूँ और LLM भी यूज़ कर सकता हूँ, या दोनों को मिक्स करके यूज़ कर सकता हूँ। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है मुझे कि मेरा कस्टम मॉडल मैंने ट्रेन किया है, फिर उसके बाद मैं LLM यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ कंपनीज होती है जहाँ स्ट्रिक्ट पॉलिसी होता है कि ये चीज़ ऐसे ही होना चाहिए बिजनेस, उसके अलावा कुछ आंसर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ LLM यूज़ करूँगा तो वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, वो मैं कुछ भी पूछूंगा आंसर कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है, ये मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल तो AI में मॉडल जैसे HTTP होता है ना, वैसे AI मॉडल्स को कम्युनिकेट करने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया है, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो भले से वो चैट हो या क्लाउड हो या जेमिनाई हो, सब कम्युनिकेशन के लिए सेम ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, MCP का। तो मैं क्लाउड के जैसे मैंने चैट किया चैट जीपीटी से, लेकिन मैं मेरा पूरा जो कन्वर्जेशन है वो फेच करके नए मॉडल को दे सकता हूँ। तो वो इसके लिए पॉसिबल है क्योंकि सब बेस वही है, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल यूज कर रहा है कम्युनिकेशन करने के लिए विद मॉडल्स। ठीक है,
और इसका स्टूडियो वर्जन भी है। ये हम लोग ने जो अभी फ्लो वगैरह बनाया ना, उसके लिए यूआई प्रोवाइड करता है। यू कैन गो डायरेक्टली, मतलब ये वाईएमएल एडिटिंग की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली डू इट फ्रॉम यूआई, जैसे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करके वगैरह वगैरह। और फिर वो ऐसे फ्लो वे में दिखाएगा। अदरवाइज हम लोग नॉर्मली कोई असिस्टेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है वो डाइवर्ट कर जाए, कोई और हेलुसिनेशन में चला जाए। तो यहाँ पे हम लोग वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि इसका काम सिर्फ मनी ट्रांसफर करना है, आके और कुछ मत करो इसमें। एंड फॉर एंटरप्राइज ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एआई का वही है कि इसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें मेरे प्रोडक्ट में। और ये जो बिल्डिंग कन्वर्जेशन एआई असिस्टेंट विद काम, असल में ये हम लोग ने जो बनाया, दिस इज नथिंग बट एआई असिस्टेंट यूजिंग काम। काम इज कन्वर्जेशनल assistant using large language model। ठीक है, यू विल हैव एंटिटीज। तो ये लोग स्लॉट्स बोलते हैं, बट एक्चुअल उसका जेनरिक टर्म एंटिटीज है। और जो ये फ्लो हम लोग बना रहे हैं ये इंटेंट है। ठीक है, इंटेंट बोलते हैं इसको। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटी कलेक्शन विथ सम एक्शन लॉजिक या बिजनेस लॉजिक, और रेस्पॉन्डिंग इन एनी वे, वॉइस हो, टेक्स्ट हो। ठीक है, यहाँ भी देखोगे, ये देखो डायलॉग फ्लो है, ये भी इंटेंट एंटिटी बनाने देता है। तो कॉन्सेप्ट सेम मिलेगा, फिर खाली इसका आपको देखना है कि किस तरीके से इंटेंट एंटिटी बनाना है और ट्रेन करना है। तो ये एक्शंस को ये फुलफिलमेंट्स बोल रहा है। तो कॉन्सेप्ट हर जगह सेम मिलेगा, ये जो जितने भी असिस्टेंट टूल है ना। बॉट प्रेस भी है, माइक्रोसॉफ्ट बॉट फ्रेमवर्क भी है। और सिर्फ एआई असिस्टेंट नहीं, इससे एआई एजेंट्स भी बना सकते हो। अब एआई एजेंट्स क्या है, असिस्टेंट में हम लोग को इनपुट देना पड़ता है। तो अगर बिना इनपुट के है और कुछ टास्क कर रहा है तो उसको हम लोग एआई एजेंट्स बोलते हैं। जैसे कि किसी ने जीरा टिकट रेस कर लिया, ठीक है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम का। अब उसका जीरा का डिटेल लेके एआई एनालिसिस करेगा कि इसका क्या करना चाहिए। वो खुद रिजॉल्व कर सकता है तो आंसर करेगा, अगर नहीं रिजॉल्व कर पा रहा है तो कोई ह्यूमन को एस्केलेट करेगा या ईमेल कर देगा। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, पर इसका डॉक्स। ये भी क्योंकि अभी बिफोर हर कोई नेचुरल लैंग्वेज खुद ही ट्रेन कर रहा था। ठीक है, क्योंकि कोई इतना स्ट्रॉन्ग मॉडल नहीं था। लेकिन ये जनरेटिव मॉडल जो एलएलएम्स है, इनके पास ऑलरेडी प्री ट्रेन डाटा है, तो रिसोर्स वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग पे। और हम लोग लिमिटेड ही ट्रेन करने वाले हैं, करेक्ट। तो इतना रिसोर्स क्यों वेस्ट करना, बिकॉज ट्रेनिंग मतलब मनी है। जब सीपीयू रन होगा कंटिन्यूसली, इट विल कॉस्ट यू मनी। इसमें माइक्रोसॉफ्ट बॉट फ्रेमवर्क भी है। इसके डॉक्यूमेंटेशन में मुझे मिला नहीं कि
क्रिएटिंग नोड्स, एडिंग कार्ड क्या है, तो सिर्फ वो नाम चेंज कर देते हैं कि कोई नोड बोल रहा है, कोई उसको एक्शन बोलेगा, कोई वर्क फ्लो बोलेगा, बट अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट सबका सेम है। हाँ, ये लैंगचैन, अगर ओपन सोर्स में कुछ चाहिए तो ये लैंगचैन करके है, ये काफ़ी। तो एआई असिस्टेंट बनाना है तो मुझे उसके ऊपर पहले चेन्स बनाना होगा, ठीक है। तो ये कैसे काम, जैसे मैंने दिखाया था ना कि ये यहाँ पे मैंने टाइप किया, तो ये सारा काम मुझे करना पड़ेगा कि ये कोई टाइप कर रहा है तो उससे एंटिटी निकालो, इंटेंट निकालो। वगैरह बनाने देता है। लैंग ग्राफ आई गेस ये सिमिलर है, जैसे ये काम करता है वैसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम पूरा पाइथन में लिख रहे हो, ठीक है, कि कौन सा मॉडल यूज करेगा, फिर ये टूल्स मतलब एक्शन जैसा है क्या ये टूल करेगा, फिर उसके बाद पे तुम LLM को वो दोगे कि ये टूल को बाइंड करो। फिर कोई अगर बोलेगा आई वांट टू ऐड 2 नंबर, तो ये टूल को लेगा, वो ऐड को 2 नंबर जो पास किया है वो देगा, नहीं पास किया तो उससे पूछेगा गिव मी 2 नंबर एंड देन इट विल रिस्पॉन्ड बेस्ड ऑन 2। मतलब ये इंटीग्रेशन जैसे समझो एक्शंस का। ठीक है, और रासा में एक और है, ये वॉइस के साथ भी काफ़ी अच्छा कंपैटिबिलिटी देता है। बट उसके लिए हमको कॉग्निटिव एपीआईज होती है, वो चाहिए रहती है जो वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करे। और ये रासा ऐसे नहीं बोल रहा है कि यू कैन यूज ओनली माय मॉडल, ठीक है। ये असल में ये जो रासा कमांड जनरेशन मॉडल है, ये भी उसने लामा का ट्रेन किया है खाली स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी डाल दूँ, जेमिनाई डाल दूँ, वो सब कुछ सपोर्ट करेगा क्योंकि LLM है। कोई भी LLM ले लो, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसमें। तो ये तुमको लॉक इन भी नहीं कर रहा है कि मेरा ही LLM यूज़ करना है।